Next, Simonite band is present in what? Simonite band is present in the cleft lip. ठीक है. Next, following technique shows part of root is retained in the socket before implant placement. This is called as what? This is known as socket shield technique. बहुत बार हमने क्वेश्चन कर लिया है. ठीक है, ऐसे करके आगे से हम थोड़ी सी बोन को बचा के रखते हैं और अंदर हम इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं. दिस इज नोन एज सॉकेट शील्ड टेक्निक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेशन फॉर 8 मिलीमीटर मैंडिबल एडवांसमेंट. 8 मिलीमीटर अगर आपको मैंडिबल एडवांस करनी है तो यू विल गो फॉर बायलेटरल सैजिटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी, BSSO प्रोसीजर. नेक्स्ट, विच of the following artery is commonly at risk for injury during gap arthroplasty. Gap arthroplasty में internal maxillary artery is at risk. Gap arthroplasty में internal maxillary artery is at risk. Next, Coleman sign is seen where? Coleman sign is seen in the floor of the mouth. ठीक है, sublingual hematoma होता है Coleman sign. It is seen in the floor of the mouth. Next, in different plate screw system, the numbering such as 1.5, 2.0, 2.4, 2.7, 3.5, 4.5. It indicates what? It indicates the diameter of the screw in millimeters. What does it indicate? It indicates the diameter of the screw in millimeters. Next, eminectomy is indicated as a treatment modality for what? Eminectomy, treatment modality for TMJ subluxation. Eminectomy आप TMJ subluxation के लिए करते हो. Next, which of the following is true about equalizer? Equalizer is a diagnostic temporary splint. ठीक है, equalizer is a fluid-filled channel splint to disocclude the teeth. The equalizer is a new application of basic physical law of nature called as Pascal's law, which states that an enclosed fluid will apply equalized pressure on all the directions irrespective of the fluid. मतलब सारी जगह पे थोड़ा सा fluid डालोगे तो सारी जगह पे बराबर pressure लगेगा. That is known as this Pascal's law. In other words, biting down on an equalizer causes the fluid to distribute equal bite forces evenly across the bite, reducing the TMJ pressure and the pain and thus ensuring the relief. ठीक है, it is not a replacement for proper dental treatment or permanent splints. It is a short-term diagnostic splint. The equalizer is not indicator for heavy bruxers or clenchers. Heavy bruxism या heavy clenching के लिए equalizer नहीं दिया जाता. Next, which of the following is a negative finding in relation to MPDS along with the absence of radiological and histological features? Negative finding is lack of tenderness of the joint. Positive sign क्या रहते हैं? Unilateral preauricular pain रहती है. Tenderness of the muscles of the mastication, particularly the lateral pterygoid. Clicking sensation in the TMJ. Limitation of the jaw motion. दो नेगेटिव साइन रहते हैं. Lack of tenderness in the joint, ठीक है, और no radiological or histological changes in the joint. MPDS is particularly MPDS ज़्यादातर पर्टिकुलर टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर में देखी जाती है. टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर्स में भी सब क्लासिफाइड इनटू इंट्राकैप्सुलर डिसऑर्डर्स और मैस्टिकेटरी मसल डिसऑर्डर्स सच एज लोकल मायोल्जिया, मायोफेशियल पेन, सेंट्रली मीडिएटेड मायोल्जिया, मायोस्पाजम्स, मायोसाइटिस, मायोफाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर, मैस्टिकेटरी मसल न्यूप्लास्टिक डिजीजेस. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्नोइड सोल्यूशन. कार्नोइड सोल्यूशन में फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होता. कार्नोइड सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ होती है? The Carnot solution is composed of 60% ethanol, 30% chloroform, 10% glyceric acetic acid और 1 ग्राम होता है फेरिक क्लोराइड. ठीक है. नेक्स्ट, द सिक्रीशंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में भी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन एंड मीरोक्राइन. एक्सोक्राइन का मतलब वो सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू बाहर निकालता है. मीरोक्राइन का मतलब है कि वाई द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्टोसिस जो है वो सिक्रीशन निकालता है. ठीक है. नेक्स्ट, holocrine mode of discharge of secretion is mainly seen in what? Holocrine mode of discharge is mainly seen in sebaceous glands. Holocrine in sebaceous glands. The cavernous sinus is related medially to what? Cavernous sinus related medially to hypophysis cerebri. Cavernous sinus related medially to hypophysis cerebri. Next, nerve passing through the center of cavernous sinus is what? Nerve passing through the center of cavernous sinus is abducens nerve. Abducens nerve and internal carotid artery are the two structures that are passing through the centers of cavernous sinus. Next, which of the following venous sinuses is enclosed by falx cerebri? Venous sinuses enclosed by falx cerebri is occipital venous sinus. ठीक है. Next, superior and inferior sagittal sinuses are present in relation to what? Superior and inferior sagittal sinuses are present in relation to falx cerebri. ठीक है. सुप्रा सैजिटल साइनस होता है सुपीरियरली, इंफ्रा सैजिटल साइनस होता है इंफीरियरली और सैजिटल साइनस होता है पोस्टीरियो इंफीरियरली टू द falx cerebri. ठीक है. falx cerebri lies in the median of the longitudinal fissure that is dividing the two hemispheres. ठीक है.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ सब ऑसिपिटल ट्राइंगल। सब ऑसिपिटल ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी होती है। सब ऑसिपिटल दैट इज डॉर्सल रैमस ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व होती है। सब ऑसिपिटल वेनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट लेसर ऑसिपिटल नर्व इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब ऑसिपिटल ट्राइंगल, ठीक है। लेसर ऑसिपिटल नर्व नहीं होता पार्ट सब ऑसिपिटल ट्राइंगल का। Next, a triangular fibrous sheet in the midline of the back of the neck is called as what? Triangular fibrous sheet in the midline of the back of the neck is called as ligamentum nuchae, ठीक है। ligamentum nuchae होता है एक triangular fibrous sheet that separates muscles of two sides of the neck. ligamentum nuchae दो sides of the neck को separate करता है ये। The suspensory ligament of berry of thyroid gland is derivative of what? Suspensory ligament of berry of thyroid gland, it is a derivative of pretracheal fascia. किसका डेरिवेटिव है? प्री ट्रेकियल फेशिया का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट गैंग्लियन इन द नेक इज व्हाट? लार्जेस्ट गैंग्लियन इन द नेक इज द सुपीरियर गैंग्लियन। लार्जेस्ट गैंग्लियन इन द नेक, सुपीरियर गैंग्लियन। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सुप्राहायोइड ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स एक्सेप्ट व्हाट? सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल्स में माइलोहायोइड आता है, स्टाइलोहायोइड होता है, जीनियोहायोइड होता है, ठीक है। लेकिन ओमोहायोइड जो चौथा ऑप्शन है दैट इज अ इंफ्राहायोइड मसल। ओमोहायोइड इज अ इंफ्राहायोइड मसल। Which of the following is called as signal nodes? तो supraclavicular nodes होते हैं, supraclavicular nodes that is left supraclavicular nodes, इनको हम बोलते हैं signal nodes, ठीक है। The left supraclavicular nodes or the virtuos or the scalene nodes are also involved in the malignant growth of the distant organs. Example, stomach, testes and abdominal organs. They are therefore known as the signal nodes, scalene nodes based upon biopsy. It's very helpful in early diagnosis of such malignancies, ठीक है। मतलब स्कैलिंग नोड की बायोप्सी अगर हम करते हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल इन मैलिग्नेंसी डायग्नोसिस। नेक्स्ट, विच मसल डिवाइड्स द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इनटू डीप एंड सुपरफिशियल पार्ट्स? तो माइलोहायोइड इज अ मसल दैट डिवाइड्स द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इनटू डीप सबमैंडिबुलर एंड सुपरफिशियल पार्ट्स ऑफ सबमैंडिबुलर, ठीक है। कौन सा? माइलोहायोइड। Next, the deep cervical fascia in the parotid region is thickened to form what? Deep cervical fascia in the parotid region, it is thickened to form the stylomandibular ligament. क्या बनाता है? Stylomandibular ligament बनाता है। Next, Stenson duct drains what? Stenson duct जो है वो parotid gland को drain करती है। Stenson is for parotid gland, ठीक है। Stenson duct is for the parotid gland और Wharton's duct is for the submandibular gland, ठीक है। Next, circumvallate papillae are supplied by what nerve? Circumvallate papillae supplied by glossopharyngeal nerve. Next, safety muscle of tongue is what? Safety muscle tongue का कौन सा होता है? That is genioglossus. Genioglossus also known as the safety muscle of tongue. Next, which of the following muscles of the tongue run from dorsum of the tongue to the ventral of the tongue? Dorsum of the tongue से लेकर ventral of the tongue तक हमारा एक muscle होता है that is known as verticalis, वो run करता है, ठीक है। Verticalis runs from dorsum of the tongue to the ventral surface of the tongue. Next, which of the following is the longitudinal muscle of the pharynx? Longitudinal muscle of the pharynx जो होता है that is stylopharyngeus, ठीक है। Stylopharyngeus muscle is the longitudinal muscle of the pharynx. Next, blood supply of the soft palate is derived from what? Soft palate की blood supply copious होती है, multiple जगह से आती है। Maxillary artery, facial artery, ascending pharyngeal artery. Maxillary artery greater palatine, ठीक है। Facial artery से ascending palatine बन जाती है और ascending pharyngeal artery से palatine branch बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस इज व्हाट? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस इज ऑफ टेंडन ऑफ टेंसर विलाय पैलेटाइन मसल, ठीक है। पैलेटल एपोन्यूरोसिस इज अ flattened tendon of tensor villi palatini muscles. All the muscles of the palate originate above or below this palatal aponeurosis. Next, muscles of palate which work around the hamular notch and forms a tendon is known as what? Muscles of palate which works around a hamular notch and forms a tendon, they are known as tensor villi palatini muscles, ठीक है। कौन सा मसल होता है जो कि हैमुलर नॉच के अराउंड होता है और एक टेंडन बनाता है दैट इज टेंसर विलाय पैलेटाइन मसल या फिर टेंसर पैलेटाइन भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट, अ 32-year-old मेल प्रेजेंट्स विद द मिड फेशियल ट्रॉमा विद द कंप्लेंट ऑफ डबल विजन। डबल विजन हो गया उसका ट्रॉमा के बाद। ही इज सीटेड 1 meter अवे फ्रॉम द होम स्क्रीन, सीटेड 1 meter अवे फ्रॉम द होम स्क्रीन, ठीक है। एंड आस्क्ड टू वेयर रेड ग्रीन गॉगल्स, ही इज आस्क्ड टू वेयर रेड ग्रीन गॉगल्स। द एग्जामिनर होल्ड्स अ रेड टेस्ट object against the screen while the patient attempts to indicate its position using green tipped wand, ठीक है। His head is kept stationary while the eye movements are recorded from primary position to the horizontal extremes. Which investigation is being performed here? देखो उसका सर सीधा रखा हुआ है, एक वांड की मदद से उसको बोल रहे हैं कि इधर से उधर देखना, तो उसको एक्सट्रीम आई की मूवमेंट करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब टेस्ट इज
HESS test, HESS test. The described procedure, that is red green goggles, red test object, green tipped wand, fixed head position, charting of eye movements on the screen at 1 meter is a characteristic feature of HESS test that is used to record diplopia. ठीक है. Next, which of the following statements regarding Lefort 1 fracture is true? Lefort 1 fracture में complete dento-alveolar part separate हो जाता है maxilla का. Dento-alveolar part of the maxilla completely separates in the Lefort 1 fracture. Next, all of the following structures are involved in the fracture lines of Lefort 2 except what? Lefort 2 में आपकी lacrimal bone भी जा सकती है, inferior orbital margin जा सकता है, and nasal septum is also gone. ठीक है. बट zygomatic arch का फ्रैक्चर जो होता है वो Lefort 2 में इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है. Lefort 2 में आपका nasal bone, frontal bone of maxilla, lacrimal bones, inferior orbital margin, maxillary antrum, pterygoid plates and nasal septum ये इन्वॉल्व होता है, लेकिन zygomatic arch इन्वॉल्व नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट, कंपेयर टू Lefort 1 फ्रैक्चर, the fracture line in Lefort 2 fracture transverses the pterygomaxillary fissure at what level? ठीक है. कंपेयर टू Lefort 1 फ्रैक्चर, जो Lefort 2 में pterygomaxillary fissure की जो लाइन हमारी गई होती है, दैट इज एट अ हायर लेवल. In Lefort 1 fracture, the horizontal line passes through the lower part of the maxilla. Lefort 1 में lower part of the maxilla से pass करती है, transversing the pterygomaxillary fissure at a relatively lower level. Lefort 1 में lower level. In Lefort 2, the pyramidal fracture line extends superiorly through the nasal bones, infraorbital rim, medial orbital wall, and therefore crosses the pterygomaxillary fissure at a higher level. This superior extension helps to distinguish between Lefort 2 and Lefort 1 in the clinical examination and radiographic features. Next, step deformity at infraorbital margin is useful in differentiating Lefort 2 fracture from what? Step deformity Lefort 2 को Lefort 3 से differentiate करती है. In Lefort 2, the fracture line passes through the infraorbital rim, producing a palpable step deformity at the infraorbital margin. ठीक है. In contrast, Lefort 3 fracture में craniofacial disjunction हो जाता है, craniofacial disjunction हो जाता है, with the fracture line running above the infraorbital margin through the nasofrontal and zygomaticofrontal sutures. Therefore, a step at the infraorbital rim is characteristic of Lefort 2 and not seen in Lefort 3. Not seen in Lefort 3. Okay. This clinical sign is useful during facial examination to differentiate between these two fracture lines. Next, during reduction of the zygomatico-complex fracture, the space between temporalis muscle and the temporalis fascia is utilized because it does what? देखो, जब हम रिडक्शन करते हैं zygomatic complex fracture का, तो स्पेस बिटवीन टेम्पोरालिस मसल एंड द टेम्पोरालिस फेशिया इज यूटिलाइज बिकॉज इट अलाउज अप्रोच ऑफ पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द zygomatic बोन एंड द मिडिल आर्च. ठीक है. ये अलाउ करती है अप्रोच ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ zygomatic बोन एंड द मिडिल आर्च. ठीक है. द स्पेस बिटवीन द टेम्पोरालिस फेशिया एंड द मसल, इट प्रोवाइड सर्जिकल रूट टू द posterior surface of the zygomatic bone and the middle aspect of the arch, aiding in elevation during reduction. ठीक है. This will aid in elevation during reduction. Next, in a blowout fracture, all of the following are seen except what? Blowout fracture में आपका fracture of orbital floor होता है, herniation of the orbital fat into maxillary sinus हो जाती है. ठीक है. Damage to infraorbital rim और rim जो है वो बहुत कम होगा. Damage to infraorbital rim या फिर fracture to infraorbital rim बहुत कम होगा. ठीक है. लेकिन फ्लोर गया है. ठीक है. सो डैमेज टू इंफ्राऑर्बिटल नर्व वो हो सकती है. दैट इज अ थिंग दैट कुड बी हैपनिंग देयर. नेक्स्ट, विच फोर्सेप्स आर शोन इन द इमेज बिलो? इसमें हमारे पास देखो डिसइम्पैक्शन कर रहा है. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज डूइंग डिसइम्पैक्शन इन दिस इमेज. सो ये कौन से डिसइम्पैक्शन फोर्सेप है हमारे पास? दीज आर रोएज डिसइम्पैक्शन फोर्सेप. ठीक है. रोएज डिसइम्पैक्शन फोर्सेप में एक जो होगा वो कर्व्ड होता है, ऐसे करके इसी में दिखाता है. ठीक है. वन इज कर्व्ड लाइक दिस. ठीक है. और इसको देखोगे तो ये एक हिसाब से आर लिखता है अपने आप को. सो इट इज रोएज डिसइम्पैक्शन फोर्सेप. रोएज डिसइम्पैक्शन फोर्सेप आर अवेलेबल इन राइट एंड लेफ्ट फोर्सेप. In the pairs of right and left forceps, they are always used in pairs. These have two prolonged forceps. One prong fits into the nasal floor and another prongs fits into the hard palate. एक फ्लोर जो है, एक prong जो है nasal floor में जाता है और एक prong जो है वो hard palate में जाता है. Next, a 23-year-old patient with mandibular prognathism. 23 साल का पेशेंट है, मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म है, इज प्लान फॉर सर्जिकल करेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड एंड हैज़ लोअर रिस्क ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी इंजरी? ठीक है. इंट्रा ओरल वर्टिकल रैमस ऑस्टियोटोमी जो है वो प्रेफर की जाती है. द इंडिकेशन ऑफ IVRO, दैट इज इंट्रा ओरल वर्टिकल रैमस ऑस्टियोटोमी मैंडिबुलर सेटबैक प्रोसीजर, इज इन द मैंडिबुलर एक्सेस पेशेंट. जिनमें मैंडिबुलर एक्सेस है उन पेशेंट में करी जाती है ये चीज़. दिस प्रोसीजर इज फास्टर
सिंपलर दैन सैजिटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर, SSRO से फास्टर और सिंपलर होता है. द रिहेबिलिटेशन टाइम इज मच शॉर्टर एंड देर इज मच लोअर इंसिडेंस ऑफ इन्फीरियर एल्व्यूलर नर्व इंजरी इन IVRO. ठीक है. The procedure is also indicated in the patients with TMJ complaints. Next, all of the following is not a procedure that is not a pre-prosthetic surgical procedure. ठीक है. फ्रेनेक्टोमी नहीं है pre-prosthetic surgical procedure. एल्वियोप्लास्टी नहीं है pre-prosthetic surgical procedure. वेस्टिबुलोप्लास्टी इज नॉट अ pre-prosthetic surgical procedure. लेकिन indirect sinus lift is a pre-prosthetic surgical procedure. ठीक है. जैसे लेवियल एल्वियोक्टोमी करते हैं, प्राइमरी एल्वियोप्लास्टी करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज होती हैं जो कि आपको फाइनल प्रोस्थेसिस देने के पहले करी जानी चाहिए. ठीक है. दैट तो उनमें एक इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट भी आता है, दैट इज अ प्री प्रोस्थेटिक सर्जिकल प्रोसीजर. नेक्स्ट, ड्यूरिंग एलिवेशन ऑफ द मैंडिबुलर थर्ड मोलर एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड डिस्टली आपने ज़्यादा फोर्स लगा दी. द मोस्ट सीरियस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस विल बी वॉट. अब अगर आपने डिस्टली ज़्यादा फोर्स लगा दी तो उससे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है इस मैंडिबुलर थर्ड मोलर की इनटू द सब मैंडिबुलर स्पेस. ठीक है. सब मैंडिबुलर थर्ड मोलर बहुत ज़्यादा क्लोज होता है टू द लिंगुअल थिन कॉर्टेक्स एरिया. ठीक है. और लिंगुअल कॉर्टेक्स की जो हमारी प्लेट होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है. व्हेन एक्सेसिव डिस्टल फोर्स और डिस्टल लिंगुअल फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है. ड्यूरिंग एलिवेशन तो लिंगुअल प्लेट में परफोरेट tooth or the root of the tooth can be pushed through the lingual plate and may get displaced into the submandibular space. Next, identify the mechanical principle involved in the picture below. देखो इस पिक्चर में एक कोई ना इंस्ट्रूमेंट उसने दांत के नीचे लगाया सर्वाइकल एरिया पे, उसको पुश कर रहा है नीचे को. ठीक है. ताकि दांत ऊपर को बाहर आ जाए. ठीक है. फोर्स नीचे को लग रही है, पुशिंग फोर्स, और बाहर को वो पुश कर रहा है दांत को. इट इज़ द लीवर प्रिंसिपल. ठीक है. और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज नोन एज एन एलिवेटर, जो कि लिवर प्रिंसिपल पे काम करता है. आप नीचे से ऊपर को फोर्स लगाओगे, दांत जो है बाहर को निकलेगा. दिस इज सिंपल. ओके. क्रायर एलिवेटर इज मोस्ट यूजफुल व्हेन. क्रायर एलिवेटर कब सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है? क्रायर एलिवेटर इज यूजफुल व्हेन वन रूट ऑफ मल्टी रूटेड टूथ रिमेन्स इन द सॉकेट. ठीक है. जब एक रूट मल्टी रूटेड टूथ की सॉकेट में बची हुई है, जैसे ऐसे दिखाई दे रहा है. ठीक है. सिर्फ एक रूट बची हुई है, उसको निकालने के लिए ही यूजिंग अ क्रायर एलिवेटर. ओके. नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिट्रैक्ट द टंग इज वॉट. ये इंस्ट्रूमेंट है एक जिसमें तीन आगे इसने होल्स बने हुए, 3 होल्स बने हुए, और ऐसे करके इसको टंग को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है. व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? दिस इंस्ट्रूमेंट इज विल्डर रिट्रैक्टर. क्या बोलते हैं इसको? विल्डर रिट्रैक्टर. ये लार्ज रिट्रैक्टर है टू रिट्रैक्ट द टंग. द सेरेटेड सरफेस हेल्प्स टू एंगेज द टंग एंड सो दैट इट कैन बी हेल्ड सिक्योरली. द विल्डर रिट्रैक्टर इज यूज टू होल्ड द टंग अवे फ्रॉम द सर्जिकल फील्ड. द ऑस्टिन रिट्रैक्टर इज यूज टू रिट्रैक्ट द चीक. ऑस्टिन रिट्रैक्टर चीक के लिए यूज होता है और विल्डर रिट्रैक्टर टंग के लिए यूज होता है. नेक्स्ट, 22-year-old मेल इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इम्पैक्टेड थर्ड मोलर. 22 साल का लड़का है, इम्पैक्टेड थर्ड मोलर निकालना. उसकी हिस्ट्री अनरिमार्केबल है, बट हिज प्री ऑपरेटिव लेबोरेटरी रिपोर्ट शोज मार्क्ड प्रोलॉन्ग्ड APTT विद नॉर्मल PT. ठीक है. ब्लड काउंट नॉर्मल है. विच पार्ट ऑफ द पाथवे इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड इन दिस पेशेंट? तो इसमें इंट्रिंसिक पाथवे उड़ा हुआ है. ठीक है. मोस्ट लाइकली टू अफेक्टेड इज इंट्रिंसिक पाथवे. APTT प्रोलॉन्ग हो चुका है लेकिन PT नॉर्मल है. दीज आर स्पेसिफिक पॉइंट्स टू डिटेक्ट द डिफेक्ट इन इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन. ठीक है. दिस पैटर्न इज सीन इन हीमोफीलिया A, दैट इज फैक्टर 8 डेफिशिएंसी. A से 8 डेफिशिएंसी, B से 9 डेफिशिएंसी. ठीक है. हीमोफीलिया B दैट इज क्रिसमस 1, दैट इज 9 डेफिशिएंसी. सर्टेन वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स के अंदर भी हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे उड़ा हुआ होता है. नेक्स्ट, a 64-year-old patient comes with COPD, presents with acute dental infection requiring incision and drainage. SpO2 जो है उसका 89 आ रहा है. Which of the following statement best reflects correct oxygen use principle for this COPD patient? देखो, इसमें हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है विदाउट द फिजिशियन कंसल्टेशन. Patient with severe COPD have chronic carbon dioxide retention and rely partially on hypoxic drive to maintain their ventilation. If high flow of uncontrolled supplemental oxygen is increased or administered to these patients, this will suddenly lead to rise in the arterial oxygen in their body, and this will suppress their respiration drive, leading to dangerous hypoventilation after the oxygen is removed. ठीक है. तो जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है. देयरफॉर ऑक्सीजन मस्ट नॉट बी गिवन रूटीनली और एग्रेसिवली इन दीज पेशेंट्स, COPD वाले पेशेंट्स में. Instead, oxygen therapy should only be initiated under physician or respiratory specialist guidance, where the controlled titrated oxygen delivery monitoring system, that is ABG analysis, should be ensured. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शंस और हैं. तीनों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं.
अगर हम हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इमीडिएटली लगा देंगे तो उससे हिपोक्सिक ड्राइव जो है वो ख़त्म हो जाएगी उसकी, तो वो बाद में सांस ही नहीं लेगा। अगर 100% ऑक्सीजन दे देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगी, वो और ज़्यादा हाइपर कैपनी को वर्स कर देगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड से सेडेशन करेंगे, क्योंकि अगर नाइट्रस ऑक्साइड से हमने सेडेट कर दिया, इट्स ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो उससे हिपोक्सिया और ज़्यादा हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर। तो वी विल गो फॉर नॉर्मल इंसिजन एंड ड्रेनेज, और उसके जो सामने वाले फैक्टर्स हैं, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसको एंग्जाइटी वगैरह हो रही है नहीं हो रही है, वो चीज़ें देखने की, वो चीज़ें हम मेंटेन करेंगे, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे उस टाइम। अगर वो नहीं होता है तो हम पहले उसके फिजिशियन से गाइडेंस लेंगे, उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट अ प्रेग्नेंट पेशेंट इन अ थर्ड ट्राइमेस्टर बिकम्स लाइट हेडेड while lying supine. What is the most appropriate immediate action that you can do? देखो यहाँ पे नस दब गई होती है पीछे की, ठीक है, तो क्योंकि बेबी है अंदर, ठीक है, सो टर्न द पेशेंट टू लेफ्ट लेटरल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेंसिव सिंड्रोम हो जाता है, ऑल्सो नोन एज AORTO, ऑटोकैवल कंप्रेशन। व्हेन शी इज लाइंग फ्लैट ऑन हर back, the gravid uterus compresses the inferior vena cava. Inferior vena cava जब दबी हुई होती है, it reduces the venous return to the heart. अब venous return to the heart डिक्रीज कर जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, बीपी डिक्रीज कर जाएगा, सर में लाइट हेडेडनेस लगेगी, पैलर लगेगा, नोजिया लगेगा, रेस्टलेसनेस एंड पॉसिबल सिनकोप कैन ऑल्सो बी देयर। टर्निंग द पेशेंट ऑन टू हर लेफ्ट साइड शिफ्ट्स द यूट्रस ऑफ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जिससे इंफीरियर वेना कावा के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा। इमीडिएटली रिस्टोरिंग द वीनस return and cardiac output. This is the fastest and most reliable way to reverse the hemodynamic compromise. The immediate critical maneuver is the left lateral position, which directly corrects the underlying mechanical cause of hypotension. Next, the image shows a peripheral blood smear from the patient scheduled for multiple extractions. Which of the following pre-operative management is mostly appropriate? इसका खून ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कई कई गोल हो रखे हैं, कई कई सिकल सेल हो रखे हैं, ठीक है, मतलब सेल्स को देखना है आपने यहाँ पे। अवॉइड जनरल एनेस्थीसिया, परफॉर्म द प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया while preventing the hypoxia and acidosis. The smear shows sickle cell RBCs indicating a sickle cell disease where low oxygen tension promotes red cell polymerization. अगर लो ऑक्सीजन टेंशन है तो रेड सेल पॉलीमराइजेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाती है, एंड वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस होना शुरू हो जाता है। इट ट्रिगर्स हिपोक्सिया, एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया एंड स्ट्रेस। क्या क्या ट्रिगर करता है? हिपोक्सिया, एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया एंड स्ट्रेस। जनरल एनेस्थीसिया इंक्रीजेस द रिस्क बिकॉज एयरवे मैनिपुलेशन एंड वेंटिलेशन कैन प्रोड्यूस ट्रांजिएंट हिपोक्सिया। जनरल एनेस्थीसिया इसका रिस्क इंक्रीज करा देता है, क्योंकि एयरवे मैनिपुलेशन वेंटिलेशन जो होती है वो ट्रांजिएंट हिपोक्सिया का रिस्क जो है उसको इंक्रीज करवा देती है। लोकल एनेस्थीसिया मेंटेन्स स्टेबल ऑक्सीजनेशन एंड अवॉइड्स दीज ट्रिगर्स जो भी हिपोक्सिया की वजह से आएंगे, इसलिए हम ऑक्सीजन दे देते हैं इसमें। नेक्स्ट, फॉर पेशेंट और चिल्ड्रन विद कंप्लीट डेसिडुअल डेंटेशन और विद मिक्स्ड डेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड। तो इसमें ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को, ठीक है, सो यू विल गो फॉर विच टाइप ऑफ स्प्लिंटिंग। कंजर्वेटिव स्प्लिंटिंग आप देते हो इसमें लेटरल कंप्रेशन स्प्लिंट्स, ओके। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विद स्प्लिंट्स और लेटरल कंप्रेशन स्प्लिंट्स, दीज आर प्रिपेयर्ड इन अ फिक्स्ड to mandibular body with circummandibular wiring for children with complete deciduous dentation or with the mixed dentation. Next, according to Kajanian and converse classification in class 1 fractures, an adequate number of teeth are present in dash is recommended. ठीक है, अगर क्लास 1 फ्रैक्चर है कजानियन और कन्वर्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से और एडिक्वेट नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट है, तो कौन सी चीज़ रिकमेंडेड होती है? लेटरल कंप्रेशन प्लेट इज रिकमेंडेड इन दिस, लेटरल कंप्रेशन प्लेट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर। इसमें आपको बताना है कौन सा फ्रैक्चर है, ठीक है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टली फेवरेबल फ्रैक्चर। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्चर जो है वो पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। अगर हम लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल से देखते हैं तो लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल में एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहा है। अब अगर ये वाला मसल इसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो दिस विल गेट लॉक्ड इन दिस फ्रंट रीजन ऑफ द मैंडिबल, सो इट इज़ हॉरिजॉन्टली फेवरेबल फ्रैक्चर, ठीक है। अनफेवरेबल कैसा होगा? अनफेवरेबल इसका उल्टा चलेगा। अनफेवरेबल में क्या होगा कि ये जो पोस्टीरियर है उससे एंटीरियर की तरफ जाएगा। लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल में देखेंगे तो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जाएगा, तो ये वाला जब सेगमेंट इसको खींचेगा तो दिस विल गेट डिस्प्लेस्ड। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल फ्रैक्चर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्रूगर क्लासिफिकेशन, द फ्रैक्चर्स इन्वॉल्विंग द टूथ बेयरिंग एरियाज ऑफ द मैंडिबल आर क्लासिफाइड एज व्हाट? Fractures involving tooth bearing areas according to Kruger classification are classified under compound fractures. All the fractures involving the tooth bearing areas of the mandible or where an external or intraoral wound is present involving the fracture line are under compound fractures.
ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज दिस। देखो दोनों साइड से हमारी मैंडिबल टूट चुकी है और मैंडिबल जो है वो इडेंचुलस है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ बकेट हैंडल फ्रैक्चर, ठीक है। बायलेटरल फ्रैक्चर ऑफ द बॉडी द इडेंचुलस मैंडिबल है, जिससे कि बकेट हैंडल की तरह सारी मैंडिबल जो है वो पोस्टीरियरली खिंच गई है ड्यू टू द माइरोहाइड मसल के पुल की वजह से। नेक्स्ट व्हाट इज द मोनोमर रेशियो ऑफ पॉलीग्लैक्टिन 910। पॉलीग्लैक्टिन 910 में मोनोमर रेशियो जो होती है दैट इज 90% ग्लाइकोलाइड होता है और 10% लैक्टाइड होता है। 90% ग्लाइकोलाइड एंड 10% लैक्टाइड, ठीक है। नेक्स्ट विच स्टेरिलाइजेशन मेथड इज यूज फॉर पॉलीप्रोपाइलिन सूचर्स। Which sterilization method is used for polypropylene sutures? तो इथाइलिन ऑक्साइड sterilization is used for polypropylene sutures. Polypropylene, the fiber is better known as proline. It is a monofilament and chemically extruded from the purified or dyed polymer. It has high extremity, high tensile strength, which it retains indefinitely on implantation and has an extremely low tissue reactivity. It can extend up to 30% before breaking and is useful to accommodate post-operative swelling and thereby helps to prevent the soft tissue strangulation. Next, a 55-year-old male with squamous cell carcinoma, 55-year-old male है, squamous cell carcinoma of tongue, undergoes wide local excision and neck dissection. Wide local excision and neck dissection. His reports show hypoproteinemia. Reports में hypoproteinemia देखा गया. He is scheduled to start chemotherapy in 1 week. The surgeon is concerned about the wound breakdown due to the poor nutrition and cytotoxic effects. Which suture material is most appropriate for closing this surgical wound? तो यहाँ पे आप पॉलीएस्टर सर्जिकल सूचर यूज़ करोगे कैंसर पेशेंट में जिनमें हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है और कीमोथेरेपी जिनकी स्टार्ट होने वाली है और वहाँ पे आपको पता है कि ब्रेकडाउन हो सकता है, तो वहाँ पे आप सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को यूज़ करेंगे। इफ़ द पेशेंट इज़ टू बी इरेडिएटेड इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोपाइलिन शुड नॉट बी यूज्ड। मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोपाइलिन नहीं यूज़ करना है, इंस्टेड पॉलीएस्टर सूचर शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट इमेज दे रखी है और बोला कि आइडेंटिफाई द सूचरिंग टेक्निक। देखो एक डीप इंसिजन गया हुआ है, दिस इज डीप इंसिजन, और सूचरिंग जो है वो पूरी एक साइड स्टार्ट करके दूसरी साइड तक करी हुई है। सो व्हाट काइंड ऑफ सूचरिंग इज इट? इट इज कॉन्टिन्यूस ओवर एंड ओवर सूचरिंग, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ओवर एंड ओवर सूचरिंग इसको बोलते हैं सिंपल इंटरप्टेड सूचर। इट इज प्लेस्ड एंड द नीडल इज देन टेकन एंड री इंसर्टेड इनटू कंटिन्यूस फैशन सच दैट द कंटिन्यूस suture passes perpendicular to the incision line below and the obliquely above. incision line से नीचे निकलेगा और obliquely ऊपर निकलेगा और इसको पूरे को एक ही साथ continuous suture दे दिया गया है। Next, which elevator principle involves inserting an instrument parallel to the long axis of tooth? Parallel to the long axis of the tooth में आप wedge करते हो चीज़ों को, ठीक है। So wedge principle is involving the insertion of the instrument parallel to the long axis of the tooth. Wedge principle or wedge elevator is forced between the root and the bone. Parallel to the long axis of the tooth, the wedge is movable in inclined plane, which overcomes a large resistance at right angles to the applied effort. It is usually used in conjunction with the lever principle. Wedge principle जो है वो conjunction with the lever principle के साथ use किया जाता है। Next, the instrument shown in the picture is used for what? ये देखो तार जैसी दी हुई है और दो हैंडल है इसके, ठीक है। तार जैसी दी हुई है, दो हैंडल है इसके। What is it? It is the instrument that is used, ये saw है एक हिसाब से, it is used to cut the mandible. इसको बोलते हैं गिगली saw. Giggly saw, it's made by twisting few pieces of wire together so that it acquires a sharp barbed cutting edge when it's moved in a to and fro motion along the long axis. At the end there is a ring to which a hook of the handle can be fitted. In the maxillofacial surgery, the saw was usually used to cut the mandible in hemimandibulectomy procedures. Care must be taken to protect the soft tissues while using this instrument. Next, identify the instrument, ठीक है। एक रिट्रैक्टर दे रखा है आपको, सिंपल सा रिट्रैक्टर है, एक साइड पे उसका पकड़ने वाला हिस्सा है, एक साइड पे उसका गोल सा हिस्सा है, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज मिनीसोटा रिट्रैक्टर। क्या है? मिनीसोटा रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर दैट इज यूज्ड टू रिट्रैक्ट द चीक्स एंड द म्यूकोपैरियोस्टल फ्लैप ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिट्रैक्टर्स आर फेराब्यूफ रिट्रैक्टर, कॉचर लैंगनबैक रिट्रैक्टर, मिनीसोटा रिट्रैक्टर। द टंग रिट्रैक्टर्स मे बी यूज्ड टू रिट्रैक्ट द टंग मीडियली अवे फ्रॉम द सर्जिकल फील्ड, फैसिलिटेटिंग द मैनिपुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद COPD रिक्वायरिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। पेशेंट है COPD का, रिक्वायरिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, कम्स फॉर अ डेंटल इमरजेंसी पेन, विच इज द ASA क्लासिफिकेशन अंडर विच द पेशेंट फॉल्स। ASA क्लासिफिकेशन 4 आएगी इसकी, ठीक है। ASA क्लासिफिकेशन 4 में क्या रहता है कि पेशेंट जो होता है वो आता है आपके पास विद अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरलिस, प्री इन्फार्क्शन एंजाइना के साथ, पेशेंट जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है 6 मंथ या 6 मंथ के अंदर अंदर, CVA जो है वो 6 मंथ आगे हुआ है,
CVA इज लेस देन 6 मंथ अगो, पेशेंट जिसका सिस्टोलिक बीपी जो है वो 200 से ज़्यादा चला गया और डायस्टोलिक जो है वो 115 से ज़्यादा है. This patient with uncontrolled dysarrhythmias required medical consultation before you start any other dental treatment or any other treatment. The patient with severe HF or COPD confining the patient to the wheelchair and requiring the patient to have supplemental oxygen therapy, वहाँ पे भी हम ये भी ASA4 के अंदर क्लासीफाई करते हैं उसको. अगर उसका BMI 440 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको और भी दिक्कतें हैं, डायबिटीज़ भी है, हार्ट की दिक्कत भी है, तब भी उसको इसी वाली क्लासिफिकेशन में दैट इज ASA4 के अंदर क्लासीफाई करेंगे. ठीक है. डेंटल कंसिडरेशन इन डेंटल इमरजेंसीज सच cases of infection pain, clinicians should treat the patients conservatively in the dental office until their medical condition improves. जब तक उसकी मेडिकल कंडीशन इंप्रूव नहीं कर सकी तब तक उसको मतलब इमरजेंसी में ट्रीट करना है, कंजर्वेटिवली ट्रीट करना है उसको. व्हेन पॉसिबल द इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुड बी नॉन इन्वेसिव consisting of drugs such as analgesics for pain and antibiotic for infection that are to be given. When the dentist believes immediate intervention is required, जब डेंटिस्ट को लगता है कि इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो इंसीजन और ड्रेनेज, एक्सट्रैक्शन, पल्प एक्सटिपेशन, इट इज सजेस्टेड दैट द पेशेंट रिसीव केयर इन एक्यूट केयर फैसिलिटी दैट इज हॉस्पिटल व्हेनेवर ही इज नीडेड. मतलब उसको ऐसी जगह पे सेंड करना है जहाँ पे उसको एग्जैक्टली इमीडिएटली अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो दूसरी टीम पहुँच सके. ठीक है, तो मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर यही चीज़ करेंगे तो बेटर रहेगा इन वाले पेशेंट्स के लिए. नेक्स्ट, पेशेंट कम्स फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन. पेशेंट मिक्सी लेटिन पर है, मिक्सी लेटिन पर खा रहा है. किसके लिए खा रहा है मिक्सी लेटिन? फॉर वेंट्रिकुलर एरिथमिया. व्हाट इज नीडेड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग लोकल एनेस्थेटिक. ठीक है, एडिटिव CNS डिप्रेशन हो सकता है इसमें. ठीक है, अगर हम लोकल एनेस्थेटिक दे देते हैं मिक्सी लेटिन के साथ तो वहाँ पे एडिटिव CNS डिप्रेशन हो सकता है. इट विल शो एन एडिटिव इफेक्ट. CNS बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, स्टैबिडेंट डिपॉजिट्स लोकल एनेस्थेटिक इन व्हाट. स्टैबिडेंट कोई मेथड है, स्लो स्प्लिट हैंड प्लीज के ड्रॉ करते परफोरेटर से बोन के अंदर, फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया को डिपॉजिट करेंगे. तो लोकल एनेस्थीसिया को हम डिपॉजिट कहाँ करेंगे? हम कैंसरस बोन के अंदर लोकल एनेस्थीसिया को डिपॉजिट करेंगे. ठीक है. स्टैबिडेंट सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ स्लो स्पीड हैंड पीस ड्रिवन परफोरेटर. इट्स अ सॉलिड 27 गॉज वायर. सो एक पूरा एक गॉज जैसा होता है, 27 गॉज की वायर होती है. दैट इज ड्रिवन एंड विद अ बेवल्ड एंड दैट इज एक्टिवेटेड. When it is activated, drill a small hole through the cortical plate of the bone. अब इस पूरे जगह के बीच से हम क्या करते हैं, अपनी 27 गॉज की नीडल डालते हैं, फिर उससे हम अपना एनेस्थीसिया जो है उसको डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, ऐसी सी शक्ल है इसकी देखने में, एक पाइप जैसी है छोटी सी जो कि एक ट्रोकार की तरह अंदर चल जाती है वो. ठीक है, जैसे है ना, जो जगह बन जाती है उससे हम नीडल डालेंगे, वहाँ से हम एनेस्थीसिया दे देंगे. नेक्स्ट, द मोस्ट पर्टिनेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज व्हाट. ये पहले तो टेक्निक आइडेंटिफाई करनी, दिस इज अ PSA नर्व ब्लॉक. इसका सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे हेमाटोमा फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है. ठीक है, अगर एक बारी भी यहाँ पे जो आपने प्लेक्सस है ऑफ द नर्व्स वो पंचर कर दिया तो यहाँ पे रिस्क ऑफ हेमाटोमा इज एक्सट्रीमली हाई. ठीक है, ड्यू टू हाई ट्यूबरोसिटी अप्रोच. नेक्स्ट, फॉर द राइट इंफ्रा ऑर्बिटल ब्लॉक, राइट इंफ्रा ऑर्बिटल ब्लॉक आपने देना. द ऑपरेटर सिट्स एट व्हाट पोजीशन. तो ऑपरेटर को किस पोजीशन पे बैठना चाहिए? राइट इंफ्रा ऑर्बिटल ब्लॉक के लिए ऑपरेटर जो है वो 10 o'clock पोजीशन पे बैठा होगा, 10 o'clock पोजीशन पे ऑफ द पेशेंट. ठीक है, 10 o'clock पोजीशन, तो मतलब कि ऐसे ऐसे पेशेंट बैठा होगा, ऊपर से दे रहा है एकदम. ठीक है, 10 o'clock पोजीशन, पेशेंट सीइंग एंड देन राइट वो दे देगा, हल्ले दे देगा यहाँ पे. नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू अबाउट वाजीरानी एक्रोसी टेक्निक एक्सेप्ट व्हाट. देखो, वाजीरानी एक्नोसी टेक्निक जो होती है वो लिमिटेड माउथ ओपनिंग के केसेस में यूज़ की जाती है. इट इज़ यूज्ड व्हेन इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक्स के लैंडमार्क्स होते हैं उनको विजुलाइज ही नहीं करते, हम नहीं किया जा सकता क्योंकि माउथ ओपनिंग कितनी कम है. इट इज़ यूजफुल व्हेन देयर इज़ अ बाइफिड मैंडिबुलर कैनाल. बाइफिड मैंडिबुलर कैनाल है तभी यूजफुल होता है. लेकिन कहाँ, कौन सा गलत ऑप्शन है? इट इज़ यूज्ड इन आइसोलेटेड प्रोसीजर्स ऑन मैंडिबुलर टीथ. आइसोलेटेड प्रोसीजर के लिए नहीं किया जाएगा. अगर हमें पूरी चीज़ सुन चाहिए आगे से पीछे तक तभी हम वाजीरानी एक्रोसी जो है उसको प्रेफर करते हैं. ठीक है, एरिया एनेस्थाइज क्या होता है? मैंडिबुलर टीथ टू मिड लाइन, बॉडी ऑफ द मैंडिबल, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द रैमस, बक्कल पेरियोस्टियम, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ऑल दीज एंटीरियर टू द एंड ये मेंटल फोरामेन तक होता है बक्कली. ठीक है,
पैलेटली अंदर लिंगुअली अंदर तक मिड लाइन तक चला जाता है, लेकिन बकली जो होता है वो मेंटल फोरामेन तक होता है। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एंड द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, लिंगुअल नर्व, लिंगुअल सॉफ्ट टिश्यूज एंड पेरियोस्टियम, लिंगुअल नर्व वो हो जाती है एनेस्थाई हो जाती है। इंडिकेशन कहाँ है यहाँ पे? लिमिटेड मैंडिबुलर ओपनिंग है, मल्टीपल प्रोसीजर्स ऑन द मैंडिबल टीथ करने हैं आपने, इनएबिलिटी टू विजुअलाइज लैंडमार्क्स फॉर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक है बिकॉज ऑफ द लार्जर टंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहाँ रहती हैं? इन्फेक्शन या फिर एक्यूट इन्फ्लामेशन इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो रखा है या फिर एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रखी है इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन, वहाँ पे नहीं करोगे। पेशेंट हु माइट बाइट देयर लिप एंड देयर टंग, जैसे कि यंग चिल्ड्रन हो गए, फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड एडल्ट हो गए, वहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू विजुअलाइज और गेन द एक्सेस टू लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द रैमस, इनएबिलिटी टू विजुअलाइज और गेन एक्सेस टू द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द रैमस ऑफ द मैंडिबल, वहाँ पे नहीं करना है। एडवांटेज क्या है? रिलेटिवली ए ट्रॉमेटिक है, पेशेंट को ज़्यादा मुंह नहीं खोलने की जरूरत पड़ती, फ्यूअर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि ट्रिस्मस वगैरह वो कम आता है। लोअर एस्पिरेशन रेट है, लेस देन 10% है, लेस देन 10% एस्पिरेशन रेट है पॉजिटिव एस्पिरेशन का। इट प्रोवाइड्स सक्सेसफुल एनेस्थीसिया वेयर अ बाइफिड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड अ बाइफिड मैंडिबुलर कैनाल आर प्रेजेंट। ठीक है, जहाँ पे हम इजीली नहीं निकाल पा रहे हैं तो वहाँ पे सक्सेसफुल एनेस्थीसिया ये देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक इमेज दे रखी है कि इंस्ट्रूमेंट की, सिरिंज लगी हुई आगे और पीछे एक मैकेनिज्म सा लगा हुआ है। व्हाट इज इट? इट इज़ बेसिकली CC लैड। क्या है ये? CC लैड सिस्टम है। इट्स अ लाइट वेट हैंड पीस held like pen like grasp device, provides increased tactile sensation, controlled release करवाता है, ठीक है, with the help of a traditional syringe. The flow rate of the local anesthetic delivery is computer controlled and thus remains constant throughout the injection. CC LAD system represents significant change in the manner in which the local anesthetic injection is being administered. ठीक है, मतलब ये एक हिसाब से कंट्रोल डिवाइस की। नेक्स्ट, ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द पिक्चर शोन बिलो एक्सेप्ट व्हाट। ये आपके पास मेटालिक एक कार्ट्रिज दे रखी है, इंजेक्शन सिरिंज जो है वो मेटालिक दे रखी है, इसके सारे एडवांटेज है। इट हैज़ विजिबल कार्ट्रिज, वन हैंड एस्पिरेशन आप कर सकते हो, रस्ट रेजिस्टेंस होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहता है? देखो, पहली चीज़ ये मेटालिक की बनी हुई है, इसमें नीडल एस्पिरेटर होता है, एक जैसे सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है, एक लोडिंग चैम्बर होगा। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि मेटल का बनने की वजह से इसका वेट ज़्यादा रहता है। ठीक है, इट हैज एडवांटेज क्या है हमारे पास? विजिबल कार्ट्रिज, एस्पिरेशन विद वन हैंड, इट इज़ ऑटोक्लेवेबल, इट इज़ रस्ट रेजिस्टेंट, इट हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इफ़ प्रॉपर मेंटेनेंस इज गिवन। ठीक है, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग क्योंकि मेटल की बनी हुई चीज़ है। डिसएडवांटेज क्या रहता है? वेट, इट इज़ हैवियर देन प्लास्टिक सिरिंज, सिरिंज मे बी टू बिग फॉर स्मॉल ऑपरेटर, जिनके हाथ ही छोटे बेचारों के, उनके लिए सिरिंज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन विद इम्प्रॉपर केयर हो सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि आप ऑटोक्लेव आपको बार बार करना पड़ रहा है इसको। सो इफ़ यू डू नॉट ऑटोक्लेव इट प्रॉपरली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट, ऐसी सी इमेज दे रखी है, दो इसकी इंडेंटेशन बने हुए हैं इन द लोअर लिप। ओके, व्हाट इज इट? Clinical picture shown in the image is characterized by bilateral paramedian pits or fistulas on the lower lip. It is the hallmark of which cleft-related syndrome? So it is a hallmark of van der Waals syndrome. ठीक है, van der Waals syndrome, it is most common single gene cause of cleft lip or cleft palate, and its pathognomic feature is the presence of congenital paramedian lower lip पिट्स और फिस्टुलास। ठीक है, लोअर लिप में पिट या फिस्टुला प्रेजेंट होती है कंजेनाइटली। दीज पिट्स ऑफन कम्युनिकेट विद द माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मैंडिबुलोफेशियल डिसॉस्टोसिस। इसमें मैंडिबुलोफेशियल डिसॉस्टोसिस भी देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, in the LAHS system, if the right-sided complete cleft is recorded as L3A3H3S3, what does the subscript 3 generally represent? 3 का मतलब होता है complete cleft extending through the structure. 3 means complete cleft that is extending through the structure. LAHS system में numerical subscripts होती हैं that are used to denote severity of the cleft within the specific anatomical structure. Example, lip, alveolus, hard palate या फिर soft palate, उनके अंदर क्या क्या हमारे पे कितनी severity आएगी वो चीज़ दिखाता है। Subscript क्या था? Typically represents an incomplete or minor cleft. Subscript जो है वो represent करता है incomplete या minor cleft. Example, a small notch in the lip, that is a subscript 1. स्मॉल नॉच अगर लिप में होगी तो दैट विल बी सबस्क्रिप्ट 1. सबस्क्रिप्ट 2 जो है इट ऑफन रिप्रेजेंट्स नियर कंप्लीट या मॉडरेट क्लेफ्ट. ठीक है, या तो पूरा कंप्लीट क्लेफ्ट है या फिर मॉडरेट क्लेफ्ट अगर होगा तो दैट इज नोन एज सबस्क्रिप्ट 2. ठीक है, उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट 3. इसमें मतलब होता है कि कंप्लीट क्लेफ्ट प्रेजेंट है वहाँ पे, मीनिंग दैट द क्लेफ्ट इज एक्सटेंडिंग फुली थ्रू एंड थ्रू द एंटायर स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट
Secondary alveolar bone grafting, that is SABG, is typically performed at the ideal age to facilitate the eruption of which permanent tooth into the grafted area. Secondary alveolar bone grafting आपकी ज़्यादातर permanent maxillary canine के लिए करी जाती है. Okay. The primary goal of SABG are to provide bone support for the teeth adjacent to the cleft. जो भी cleft के adjacent हमारे पास teeth है उसमें bone support मिल जाए. Closure of the oral nasal fistula, that's a hole connecting the nose and the mouth, that often exists in the alveolar segment. It provides a stable base for the erupting permanent maxillary canine. SABG is ideally performed when the permanent maxillary canine has approximately 1/2 to 2/3 of its root form. जब हमारा 1/2 से लेकर 2/3 of the root form हो चुके थे तब हम SABG करते हैं. This is usually corresponding to the child being between 9 to 12 years of age. Performing the graft at this precise time, 9 से 12 साल की उम्र में जब हम ग्राफ्ट करते हैं, ठीक है, इट अलाउज द परमानेंट कैनाइन टू इरप्ट डायरेक्टली थ्रू द न्यूली प्लेस्ड कैंसलस बोन ग्राफ्ट. ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ द टूथ प्रमोट्स द ग्राफ्ट सक्सेस, स्टिमुलेट्स द बोन टिश्यू, एनहांसेस द ग्राफ्ट हीलिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफ्ट. ठीक है, ऑल्सो इट स्टेबलाइजेज द एल्वियोलस. द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड फॉर लॉन्ग टर्म ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट, ये एल्वियोलस को स्टेबलाइज करके रखता है जो ग्राफ्ट है. नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल ऑफ फर्लो डबल opposing Z plasty. Furlow double opposing Z plasty technique for palatoplasty is to achieve what crucial functional outcome. ठीक है, ये जो फर्लो डबल अपोजिंग Z plasty, इसका आउटकम हमारे पास क्या अचीव करना होता है? इसमें हमें वी नीड टू लेंथन द सॉफ्ट पैलेट एंड रेट्रो प्रोट्रूजन ऑफ द वेलार मस्कुलेचर. ठीक है, लेंथन करना है सॉफ्ट पैलेट को और जो रेट्रो प्रोट्रूजन है वेलार मस्कुलेचर की उसको ठीक करना होता है. दीज आर टू गोल्स. In a cleft palate, the crucial muscle is responsible for palatal movement, the levator veli palatini muscle, and that is misaligned muscle. Instead of forming a transverse link, the muscle fibers run parallel to the cleft edge and insert abnormally into the posterior hard palate. एक आता है double Z plasty. Double Z plasty is the technique that uses two opposing Z-shaped incisions, one on the oral side and one on the nasal side, which is being transposed. ठीक है, डबल Z बनाते हैं, उसको खोल के अपन जोड़ देते हैं. ठीक है, उसके बाद आती है बात लेंथनिंग के बारे में. लेंथनिंग इज ट्रांसपोजिंग द फ्लैप्स मैथमेटिकली, लेंथनिंग द सॉफ्ट पैलेट 73% ऑफ इट्स लेंथ डायगोनल ऑफ द डायगोनल लिम्ब ऑफ द जेड. दिस इंक्रीज लेंथ इज क्रूशियल फॉर अचीविंग क्लोजर अगेंस्ट द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल. ठीक है, तीसरी आती है मस्कुलर रिपोजिशनिंग, LVP रिकंस्ट्रक्शन. क्रूशली the Z plasty allows the surgeon to dissect the misplaced LVP muscle bundles from their abnormal insertion and suture them together in the midline, creating a proper muscle sling that is also shifted posteriorly. Muscle sling जो होगा वो retro positioned होता है. This anatomical reconstruction restores the function and significantly improves the speech results in the patients. Okay, next, according to Vue's classification of clefts, a complete unilateral cleft involving a soft palate and a hard palate and extending through the alveolar process. ठीक है, सॉफ्ट पैलेट को भी इन्वॉल्व कर रहा है, हार्ड पैलेट को भी इन्वॉल्व कर रहा है और जो एल्वियोलर प्रोसेस है उससे एक्सटेंड कर रहा है प्राइमरी पैलेट में. ठीक है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन व्यूज़ में? इट इज़ व्यूज़ क्लास 3. ठीक है, व्यूज़ की डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है. एक में सिर्फ हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व होता है, एक में सिर्फ सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व होता है, एक में हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट और एल्वियोलस इन्वॉल्व होती है, एक में बायलेटरल हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट एल्वियोलस इन्वॉल्व होती है. और क्लास 1 में हमारा सिर्फ सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व हो रहा है, क्लास 2 में हार्ड और सॉफ्ट पैलेट दोनों गए. क्लास 3 में हमारा व्यूज़ क्लास 3 में सिर्फ यूनिलेटरल हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट और यूनिलेटरल एक साइड पे क्लेफ्ट लिप इन्वॉल्व है. और व्यूज़ क्लास 4 में हमारे पास दोनों साइड के वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप होता है इसमें. ओके, नेक्स्ट, द प्राइमरी रीज़न फॉर परफॉर्मिंग प्राइमरी पैलेटोप्लास्टी दैट इज क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर बिटवीन 9 to 18 months of age is to minimize the risk of what? देखो 9 से 18 साल के मंथ ऑफ एज में उसके बाद जो है स्पीच डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, तो उस स्पीच में कोई दिक्कत ना आए इसलिए हम स्पीच के इश्यूज़ को पहले सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हाइपर नेज़ालिटी, कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन, उनको रिमूव करने के लिए वी गो फॉर द पैलेटोप्लास्टी, प्राइमरी पैलेटोप्लास्टी इन 9 to 18 months ऑफ एज. नेक्स्ट, रेडियोग्राफ इज गिवन जिसमें कि आपको बताना है कि ये क्लासिफिकेशन कौन से साइड का हमारा जो इम्पैक्टेड मोलर है वो कौन से साइड का है. ऑलराइट, सो इन दिस वी हैव अ बक्को एंगुलर इम्पैक्टेड मोलर. द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैक्टेड मैक्सिलरी थर्ड मोलर्स इज अकॉर्डिंग टू आर्चर. ठीक है, आर्चर ने 1975 में क्लासिफिकेशन दी थी मैक्सिलरी थर्ड मोलर्स की इम्पैक्शन के लिए. 1 इज मीजियो एंगुलर, 1 इज मीजियो एंगुलर, 2 इज डिस्टो एंगुलर. 2 गए, 1 और 2 चले गए. उसके बाद वी हैव 3 दैट इज वर्टिकल. ओके, देन वी हैव 4 दैट इज हॉरिजॉन्टल. 5 इज बक्को एंगुलर, 5 is buccoangular, 6 is
लिंगो एंगुलर, 6 इज लिंगो एंगुलर एंड 7 इज इन्वर्टेड, ठीक है। 1 मीजियो, 2 डिस्टो, 3 वर्टिकल, 4 हॉरिजॉन्टल, 5 is buccoangular, 6 is linguoangular and 7 is inverted. Next, for the removal of impacted mandibular third molar, which type of flap is shown in the image below? देखो इसमें आपका फ्लैप किस तरह का दिया हुआ है ये पूछ रही है, ठीक है। ओके, द इमेज के हिसाब से दिस इज अ ट्रायंगुलर फ्लैप, जिस फ्लैप में 2 इंसिजन दे रहे हैं हम ऐसे ऐसे, बेस नहीं छोड़ेंगे। This is known as a triangular flap. Triangular flap is indicated in the cases where the impacted tooth is deeply embedded into the bone and requires extensive bone removal. Next, the angulation of impacted third molar more than 90 degrees is given the what assessment score of what? ठीक है, assessment score कितना दिया जाता है वर्फ assessment score के हिसाब से। अगर ज़्यादा है तो it is, अगर more than 90 degrees वो impacted है, ठीक है, angulation more than 90 degrees है तो it is given the score 4. वर्फ जो हमारा असेसमेंट स्कोर होता है उसमें विंटर क्लासिफिकेशन के हिसाब से इफ दिस इज हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन वी गिव अ स्कोर ऑफ 2, डिस्टो एंगुलर वी गिव अ स्कोर ऑफ 2, मीजियो एंगुलर वी गिव अ स्कोर ऑफ 1 और वर्टिकल में हमारे पास 0 आता है। हाइट ऑफ मैंडिबल अगर 1 से 30 mm तक आ जा रहा है हमारा, उतना ही एम्बेडेड है तो वी गिव अ स्कोर ऑफ 0। 31 मतलब 3 सेंटीमीटर से 3.4 सेंटीमीटर तक अगर जा रहा है, या फिर 31 mm से लेकर 34 mm तक जा रहा है तो विल गिव अ स्कोर 1। 35 से 39 mm तक जा रहा है तो विल गिव अ स्कोर 2, ठीक है। ये हाइट ऑफ मैंडिबल के हिसाब से। एंगुलेशन ऑफ सेकंड मोलर की एंगुलेशन के हिसाब से अगर 1 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में है तो वी गिव अ स्कोर 0। 60 से 69 के बीच में है तो 1, 70 to 79 के बीच में है तो 2, 80 to 89 के बीच में है तो 3 और 90 प्लस है तो 4, ठीक है। अगली बात आती है रूट शेप की। रूट शेप अगर कम्प्लेक्स है तो वी गिव अ स्कोर ऑफ 1, ठीक है। अगर रूट शेप जो है वो फेवरेबल कर्वेचर वाली है तो वी गिव अ स्कोर ऑफ 2। अगर अनफेवरेबल कर्वेचर है रूट का तो वी गिव अ स्कोर ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद फॉलिकल्स की बात आती है। फॉलिकल्स में वी हैव नॉर्मल फॉलिकल, एनलार्ज पॉसिबली एनलार्ज फॉलिकल एंड एनलार्ज फॉलिकल। नॉर्मल वी गिव अ स्कोर ऑफ 0, पॉसिबली एनलार्ज वी गिव अ स्कोर ऑफ 1, एनलार्ज फॉलिकल वी गिव अ स्कोर ऑफ 2। पाथ ऑफ एग्जिट अगर स्पेस अवेलेबल है तो वी विल गिव अ स्कोर 0। डिस्टल कस्प अगर कवर्ड है तो वी विल गिव अ स्कोर ऑफ 1। मीजियल कस्प भी कवर्ड है, पहले तो डिस्टल ही कवर्ड है, अब मीजियल भी कवर्ड है बोन से तो वहाँ पे वी विल गिव अ स्कोर ऑफ 2। अगर दोनों कवर्ड हैं तो वी विल गिव अ स्कोर ऑफ 3 और टोटल स्कोर इस वर्फ वाले में 33 होता है। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द विंटर वॉर लाइन्स फॉर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स, लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द मार्जिन ऑफ द एल्वियोलर बोन कवरिंग द थर्ड मोलर इज नोन एज व्हाट? It is known as amber line. Amber line is drawn from the surface of the bone on the distal aspect of the third molar to the crest of the interdental septum between the first and the second molars. ठीक है, amber line represents the margin of the alveolar bone covering the third molar. On removing the soft tissue, only the part above the amber line can be visualized. Thus, it indicates that the amount of bone which will have to be taken out of the आउट, मतलब कितनी बोन हमें बाहर निकालनी टू रिमूव द टूथ, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्फ असेसमेंट, व्हाट स्कोर इज गिवन इन द सेक्शन ऑफ विंटर क्लासिफिकेशन टू हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड थर्ड मोलर? हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड थर्ड मोलर के लिए अभी हमने बात की कि 2 स्कोर देंगे, 2 स्कोर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द इमेज बिलो शोज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पेल एंड ग्रेगोरी। ये इमेज आपको एक इम्पैक्शन की क्लासिफिकेशन बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ओके। So Pell and Grigori के हिसाब से it is class 2 position B. What is it? It is class 2 position B. Impaction जो होती है Pell और Grigori के हिसाब से अगर सेम ऑक्लूजन पे आ रही है तो उसको क्लास ए बोलते हैं। अगर मीजियो एंगुलर है, थोड़ी सी ऑक्लूजन के नीचे है तो क्लास बी। अगर बहुत ही ज़्यादा ऑक्लूजन के नीचे चली गई तो दैट इज़ नोन एज क्लास सी अकॉर्डिंग टू पेल एंड ग्रिगोरी क्लासिफिकेशन। फिर आती है कि ये इम्पैक्शन डेप्थ के हिसाब से हुआ, ठीक है। अगर सेम ऑक्लूजन लेवल है तो ए, थोड़ा सा नीचे तो बी, और उसके दूसरे वाले की जो आगे वाला उसकी रूट तक अगर ये दूसरा दांत लास्ट वाला प्रेजेंट है तो देन सी। फिर आता है रैमस रिलेशनशिप। उसमें रैमस रिलेशनशिप में पहले ग्रिगोरी में क्या रहता है कि रैमस कितना कवर कर रही है बोन को, कितना कस्प कवर कर रही है। क्लास ए में हमारा कोई भी कस्प जो है वो थर्ड मोलर का कवर नहीं होता है। क्लास बी में हमारा या फिर क्लास 2 में हमारा जो है, क्लास 2 बी नहीं क्लास 2 में डिस्टल कस्प कवर्ड रहता है। क्लास 3 में दोनों डिस्टल और मीजियल कस्प कवर्ड रहते हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग टीथ इन द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पैक्शंस। 4 ऑप्शन दिए, मैक्सिलरी कस्पिड, मैंडिबुलर कस्पिड, मैक्सिलरी थर्ड मोलर, मैंडिबुलर थर्ड मोलर। सबसे ज़्यादा कॉमनली इम्पैक्टेड होता है मैंडिबुलर थर्ड मोलर, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिलरी थर्ड मोलर, मैंडिबुलर थर्ड मोलर के बाद आएगा मैक्सिलरी थर्ड मोलर, ठीक है, इम्पैक्शन के लिए। फिर आती है बात
मैक्सिलरी कस्पिड्स की, जो मैक्सिलरी कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली इम्पैक्शन देखे जाते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन इसमें आएगा, दैट इज़ मैंडिबुलर कस्पिड। ये 4 ऑप्शन को जैसे हमने अरेंज करना था, तो ठीक है। नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी, सभी दांतों की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पैक्टेड टीथ हैज फॉलोज: मैंडिबुलर थर्ड मोलर, मैक्सिलरी थर्ड मोलर, मैक्सिलरी कस्पिड, मैंडिबुलर बाइकस्पिड, मैक्सिलरी कस्पिड, मैंडिबुलर बाइकस्पिड, मैक्सिलरी जो कैनाइन है उसके बाद आएगा मैंडिबुलर प्रीमोलर एक हिसाब से। फिर आएगा मैंडिबुलर कस्पिड। मैंडिबुलर प्रीमोलर के बाद जो हमारे मैंडिबुलर कैनाइन होते हैं वो इम्पैक्टेड होते हैं। फिर कैनाइन के बाद वी गो फॉर मैक्सिलरी बाइकस्पिड, मैंडिबुलर कैनाइन, देन मैक्सिलरी बाइकस्पिड, मैक्सिलरी प्रीमोलर मैंडिबुलर कैनाइन के बाद आता है। फिर इन सब के बाद वाली इम्पैक्शन जो होती है वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की होती है, और सबसे कम हमारी इम्पैक्शन होती है मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर की। मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर की लीस्ट हमारी इम्पैक्शन देखी जाती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, a 19-year-old patient presents with multiple jaw cysts, bifid ribs and basal cell carcinoma of the skin. Multiple jaw cysts हैं, bifid rib है, basal cell carcinoma of the skin है। Jaw lesion shows high recurrence after enucleation, ठीक है। Which molecular abnormality is likely to be involved? तो यहाँ पे PTCH1 जीन म्यूटेशन जो है वो देखी जा सकती है। The basal cell nevus syndrome, it is a rare inherited disorder that is inherited in an autosomal dominant manner. गॉर्लिन और गॉस ने पहली बार इसको डिफाइन किया था, दिस कंडीशन एज ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम। इट कंप्राइजेज ऑफ द प्रिंसिपल ट्रायड ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा, जॉ सिस्ट एंड बाइफिड रिब्स। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, जॉ सिस्ट होती है, बाइफिड रिब्स होती हैं। द पैथोजेनेसिस ऑफ BCNS इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन इन द PTCH1 जीन, ठीक है। नेक्स्ट, द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड शोज सिस्टिक ल्यूमन, lining epithelium with palisaded basal cells, reverse nuclear polarization, stellate reticulum like cells focally are present, ठीक है। ये stellate reticulum like focally जो present है वो सारी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऐसी ऐसी दिखाई दे रही है। ओके, नाउ इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस लीजन? इट इज अ यूनिसिस्टिक अमीनोब्लास्टोमा दैट इज ऑल्सो अ ल्यूमिनल टाइप। यूनिसिस्टिक अमीनोब्लास्टोमा विद इट्स हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स दैट इज ल्यूमिनल टाइप, जिसमें epithelial lining changes into ameloblastic epithelium. Okay, these changes are confined to the luminal surface of the cystic lesion. All right. Next, in horizontal osteotomy, the line should be placed at least how many millimeter above the tooth apices to preserve the blood supply of the tooth. ठीक, कितनी दूर हमें अपाइसिस से जो है वो हॉरिजॉन्टल ऑस्टियोटोमी में लाइन रखनी पड़ती है कि हम जो ब्लड सप्लाई है, पल्पल ब्लड सप्लाई, उसको प्रिजर्व कर सकें? तो आंसर इज 5 to 6 millimeter. Bell recommended that osteotomy is at least requiring 5 to 6 millimeter of the bone or the tissues above the tooth apices to prevent the compromising of pulpal blood supply. डॉटसन ने इसको 1994 में कंफर्म किया था बाय रीवैस्कुलराइजेशन, ठीक है, दैट इज अकरिंग बाय 6 weeks पोस्ट ऑपरेटिवली। मतलब 6 weeks के अंदर हमारी जो है पोस्ट ऑपरेटिवली रीवैस्कुलराइजेशन जो है वो अकर होना शुरू हो जाती है। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ 5 to 6 millimeter इज मेंटेन, ठीक है। 5 से 6 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना होता है फ्रॉम द पाइसेस ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट, द इंडिकेशन फॉर ऑर्बिटल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन आर व्हाट? ऑर्बिटल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन आप कब कब करोगे? जब आपका नॉन रिजॉल्विंग डिप्लोपिया है जो कि 2 से 3 हफ्ते से नॉन रिजॉल्विंग है। इनोप्थैल्मोसिस जो है वो ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर से, मतलब आंखें अंदर की तरफ धस गई हैं और 2 मिलीमीटर से ज़्यादा धस गई हैं अंदर की तरफ। ऑर्बिटल फ्लोर डिफेक्ट इज लार्जर देन 50%। अगर ऑर्बिटल फ्लोर, अगर ब्लो आउट फ्रैक्चर हुआ और उसमें ऑर्बिटल फ्लोर का जो डिफेक्ट दैट इज लार्जर देन 50%, तो वहाँ पे ये चीज़ जो इंडिकेटर रहती है, दैट इज द ऑर्बिटल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन इज इंडिकेटेड, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर ऑफन लार्जर देन 50% ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर एरिया और ग्रेटर देन 2 by 2 centimeters of the defect size, especially in the zone between the floor and the medial wall. Diplopia, or which is non-resolving diplopia and persistent diplopia for more than 2 weeks due to entrapment or fibrosis of the orbital soft tissues, वहाँ पे ये चीज़ करी जाती है, that is reconstruction of the orbital floor. एनोप्थैल्मोसिस अगर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है या फिर वो क्लिनिकली विजिबल है, क्लिनिकली आपको एनोप्थैल्मोसिस दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे भी सर्जिकल इंटरवेंशन आपको करनी है। इंडिकेशन फॉर ऑर्बिटल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन, वहाँ पे इमीडिएट इंटरवेंशन रहता है, दैट इज इन लेस देन 24 आवर्स, ठीक है। लेस देन 24 आवर्स में क्या रहेगा कि अगर आपका वाइट आई ब्लो आउट हो गया, बिल्कुल वाइटिश आई होगी, ये ब्लो आउट जो फ्रैक्चर बजा हो तो वाइटिश आई होगी। CT एविडेंस में एंट्रैपमेंट ऑफ पॉजिटिव FDT और ऑक्लूजो वेगल्स रिस्पॉन्स दिखाई दे रहे हैं। विजन थ्रेटनिंग इमरजेंसी अगर CT में। फिर आते हैं अर्ली, यानी लेस देन 14 डेज में अगर कुछ हो रहा है तो CT एविडेंस शो करते हैं एंट्रैपमेंट विद पॉजिटिव FDT एंड नॉन रिजॉल्विंग डिप्लोपिया। पॉजिटिव FDT आ जाता है, नॉन रिजॉल्विंग डिप्लोपिया आ जाता है CT में। फिर अगर अर्ली लेस देन 14 डेज में हो रहा है तो अर्ली ऑनसेट, दैट इज एनोप्थैल्मोसिस एंड
थैलमोस, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 50% अगर हमारा ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर हो गया या फिर 2x2 का फ्लोर डिफेक्ट है हमारे पास। फिर लेट ग्रेटर देन 14 डेज में अगर हमारे पास आता है तो इसमें नॉन रिजॉल्विंग सिम्टम्स या फिर लेट एनोप्थाल्मोसिस या फिर हाइपोथैलेमोस अगर देखा जाता है तो वहाँ पे भी ये रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर एक्सप्लोरेशन आर एसोसिएटेड, दैट इज ऑप्थेल्मिक इंजरीज, जैसे कि रेटिनल टीयर्स अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे नहीं करना होता है, दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस अगर हो गई है तो वहाँ पे नहीं करना होता है ऑर्बिटल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन, एकदम से नहीं करना होता। अगर रप्चर्ड ग्लोब है तब भी नहीं करना होता। एवल्जन इंजरी ऑफ द ग्लोब हो चुकी है तब भी नहीं करना होता। एंड लॉस ऑफ विजन इन वन आई विद ओनली वन आई सीइंग इन्वॉल्व इन द फ्रैक्चर, ठीक है, जो कि फ्रैक्चर्ड आई है उसी से दिखाई दे रहा है, दूसरी से नहीं दिखाई दे रहा, तब भी नहीं करना है उसको, ठीक है, तब भी इमीडिएट नहीं करना है। यू विल डिस्कस द केस, यू विल गो फॉर कंप्लीट रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट, बट इमीडिएट यू विल नॉट गो फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर। नेक्स्ट, हैमर की एरियाज लोकेटेड इन व्हाट? हैमर्स की एरिया जो होता है दैट इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल फ्लोर। ओके, हैमर की एरिया इज द posterior medial aspect of the orbital floor. What is it? It's the posterior medial aspect of the orbital floor. The floor follows a gentle slope from its medial to lateral side. The highest point lies in the posterior medial aspect of the floor, forming a bulge called as the hammer key area. Highest point जो lie करता है at the posterior medial aspect of the floor, forming a bulge that is known as hammer's key area, which influences the position of the globe in the anterior posterior एक्सेस, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्शन में पोजीशन ऑफ ग्लोब को वो इंटरसेप्ट करता है। नेक्स्ट, इन द सैजिटल सेक्शन इन द सैजिटल व्यू द फ्लोर फॉलोज अ लेजी एस शेप। सैजिटल व्यू में फ्लोर जो है वो लेजी एस शेप फॉलो करता है, विद द एंटीरियर पार्ट इज कनकेव एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज convex. Anterior part is concave and the posterior part is convex. This reconstruction of the convexity is important to maintain the anterior position of the globe, ठीक है। Next, identify the instrument shown here which is used for percutaneous reduction of zygoma. इस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या बोलोगे? Which is being used for percutaneous reduction of zygoma. ठीक है, एक हैंडल बार है और एक स्ट्रेट उसमें चीज़ गई हुई है, स्ट्रेट आगे से बिल्कुल स्ट्रेट सा लग रहा है, और आगे हो सकता है हुक भी हो इसके, ठीक है। इट इज़ अ पॉस विलो हुक या फिर इसको स्ट्रॉ हाइमर हुक भी बोलते हैं। पॉस विलो हुक बोलते हैं या फिर स्ट्रॉ हाइमर हुक बोलते हैं, ठीक है। द डायरेक्ट परक्यूटेनियस एलिवेशन ऑफ द डिप्रेस्ड ज़ाइगोमा और द ज़ाइगोमैटिक आर्च कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग स्ट्रो हाइमर hook, that is STROHMEYER hook. The J-shaped bone hook is inserted through the short incision posterior to the zygomatic buttress and rotated medially and upwards to engage behind the temporal surface of the zygoma or the inner aspect of the arch fragments. यहाँ पे घुसा देंगे इसको, inner aspect of the arch fragment पे पकड़ेंगे और पीछे खींच लेंगे, ठीक है। Care is taken not to enter the inferior orbital fissure. Anterior and lateral traction under palpation and external inspection brings the bone back to its proper position, often accompanied by audible crepitation sounds. Next, a 20-year-old patient with orbital floor fracture on the right eye has a significant enophthalmosis and is operated, and orbital floor reconstruction is done with a titanium mesh. The next post-operative day, the patient has severe pain on the right eye with rapid deterioration of the vision. On examination, chemosis and proptosis was noticed as shown in the image below. CT scan shows retrobulbar hematoma. Fundoscopy revealed pale edematous fundus with cherry red spot lesion. The next line of appropriate management for this patient would be what? देखो, पेशेंट की ऐसी प्रेजेंटेशन हो गई है आफ्टर सर्जरी, ठीक है, पूरी आँख लाल हो चुकी है, ठीक है, पीछे आँख के पीछे हेमाटोमा बन चुका है। सो व्हाट विल यू डू? यू विल गो फॉर इमीडिएट डीकम्प्रेशन बाय लेटरल कैंथोटोमी। इमीडिएट डीकम्प्रेशन करोगे आप बाय लेटरल कैंथोटोमी। रेट्रोबल्बल हेमाटोमा लीडिंग टू लॉस ऑफ विजन इज अ मेडिकल इमरजेंसी. It is the classical signs of arterial occlusion or spasm in the macula, appearing as a bright red, that is cherry red spot, or retrobulbar hemorrhage that can be treated conservatively if the vision of the retina can be maintained. ठीक है, lateral canthotomy and cantholysis with careful blunt dissection through the periorbital tissue and dissection through the muscular septum between the lateral and inferior rectus muscles relieve the pressure by evacuating the hematoma from the intramuscular cone. Okay. Next, during TMJ arthrocentesis, the standard superior joint space entry point, that is the first needle, is located where? TMJ arthrocentesis जब हम करते हैं तो superior point जो होता है हमारा, that is 10 mm anterior to tragus, 10 mm anterior to tragus, ठीक है, and 2 mm
inferior to canthotregal line. Canthotregal line से 2 मिलीमीटर inferior और 10 मिलीमीटर anterior to tragus. ठीक है, this is what it is. Okay. Arthrosynthesis consists of TMJ lysis and TMJ lavage. The placement of medications into the joint and examination under anesthesia. It is simple, cost-effective, minimally invasive procedure with little morbidity. The Holmlund-Helsing line is the crucial anatomical landmark, which is line from the tragus, that is ear, to the lateral canthus, that is outer border of the eye, to guide the needle placement for entering the superior joint space. Typically 10 millimeters हमारे पास एंटीरियर जाते हैं हम ट्रेगस से 10 मिलीमीटर एंटीरियर और 2 मिलीमीटर बिलो द ये ट्रेगस और ये वाली आउटर कैंथस की जो लाइन होती है. ठीक है, दिस इज टू टारगेट द ग्लीनोइड फोसा, इंश्योरिंग सेफ एक्सेस फॉर इरिगेशन एंड मेडिकेशन डिलीवरी. ठीक है, हमने देखी है. ठीक है, बार बार 10 मिलीमीटर की लाइन बनेगी, जैसे कि दैट इज़ 1 सेंटीमीटर. ठीक है, और 2 मिलीमीटर डाउन जाएगी. ओके, तो दिस विल बी डायरेक्टली गोइंग इनटू द जो फोसा है हमारा. द चॉइस ऑफ इंट्यूबेशन इन बायलेटरल टीएमजे एंकाइलोसिस इज व्हाट. तो इसमें हम नॉर्थ पोल रे ट्यूब देते हैं. ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन द टीएमजे एंकाइलोसिस केसेस इज फाइबर ऑप्टिक ट्यूब और वीडियो लैरिंजोस्कोप. सिंस ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन कैन डैमेज द मिडल और inferior epistaxis, nasal mucosal damage it could do, infection it could do, and it could lead to turbinate. Okay, now usually a pre-curved endotracheal tube is preferred to avoid kinking. A north pole ray tube, it is ideal as it is directed cranially and does not interfere with the surgical field. ठीक है, ये हमारे पास CT ट्यूब जैसे आती है, endotracheal tube, north pole endotracheal tube. ऑलराइट, नाउ नॉर्थ फेसिंग का मतलब होता है ये ऊपर की तरफ जा रही होती है. ठीक है, नीचे वाली जो वाइट कलर की है ना, दैट इज द नॉर्थ फेसिंग वन. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, identify the condition shown below. What could be the facial deformity that could be expected in this case? तो इसमें हमारे पास ऐसा एक स्कैन दे रखा है. ठीक है, एक साइड पे मतलब सारा कॉन्डाइल के ऊपर इस चीज़ है जो भी है. It is anti-gump deformity. Anti-gump deformity is a mandibular deficiency, severe mandibular deficiency deformity characterized by absence or marked shortening of the mandibular body. Absent body हो जाती है या फिर marked shortening हो जाती है of the mandibular body, giving a chin-less appearance. Chin-less appearance दिखाई देती है. It is seen in the long-standing cases of the bilateral TMJ ankylosis, which prevent the mandibular growth. Alright, mandibular growth इसमें prevent हो जाती है. Anti-gump ये कार्टून जैसा है, इसकी डिफॉर्मिटी आ जाती है. Now anti-gump deformity, it is a euphemism for anterior mandibular defect that creates some appearance of absent chin or a lower lip that is severely retrognathic lower jaw. It is named after the character in 20th century comic strip, that is anti-gump. Next, the internal maxillary artery is at the risk of damage during the surgical procedure. To manage which of the following condition? जब हम TMJ एंकाइलोसिस को सर्जिकली अप्रोच करते हैं तब हमारी इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी जो होती है उसमें रिस्क ऑफ डैमेज रहता है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयड सर्जिकल टेक्निक्स फॉर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस इज गैप आर्थ्रोप्लास्टी, बट इट कैरीज द रिस्क ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव हेमरेज. स्टडीज हैव शोन दैट द इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी रन्स 3 मिलीमीटर मीडियल टू द मिड सिग्मोइड नॉच. इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो 3 मिलीमीटर मीडियल रन करती है टू द मिड सिग्मोइड नॉच. Prasad et al. in their study have analyzed that the mean distance of the internal maxillary artery from the ankylotic mass. It was found out to be on an average of 4 millimeter from the middle edge of the ankylotic mass. ठीक है, नेक्स्ट 30-year-old पेशेंट रिपोर्ट्स विद कंप्लेन ऑफ पेन ओवर द TMJ. लेफ्ट TMJ के ऊपर उसको पेन थी विच इज इंक्रीज इन द मॉर्निंग, और ये पेन जो है वो इंक्रीज कर जा रही है इन द मॉर्निंग. ऑन एग्जामिनेशन देयर इज टेंडरनेस, अ क्लिटिंग साउंड ड्यूरिंग जॉइंट मूवमेंट. ठीक है, एग्जामिनेशन ऑल्सो रिवील्स एट रीजन ऑफ द पोस्टीरियर टीथ. द पॉसिबल डायग्नोसिस इज व्हाट? द पॉसिबल डायग्नोसिस इज एंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन. ठीक है, एंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन ऐसा रहता है इसमें. ठीक है, डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन का मतलब है कि ये डिस्क आगे जा रही है, क्लिकिंग साउंड आ रही है, वापस ये अपनी जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है कॉन्डाइल की वो वहाँ पे चला जा रहा है. ठीक है, दिस इज विद रिडक्शन. ओके, नाउ इट्स क्लोज्ड, पार्शली ओपन और फिर फुली ओपन. ठीक है, तो 3 सिनेरियो हमने दिखाए थे, क्लोज, पार्शली ओपन, फुली ओपन. द फॉलोइंग सिनेरियो डिस्क्राइब्स अ केस ऑफ इंटरनल डिस्क डिरेंजमेंट. दिस कंडीशन इज यूजुअली सीन along with the standing cases of bruxism, which can be revealed by that region of the teeth as mentioned in the case. There are 2 types of disc displacement. A characteristic feature of disc displacement with reduction is that there is clicking sound as the disc is reduced back to its original position. जैसे डिस्क को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाओगे तो वहाँ पे डिस्क की जो है वो रिडक्शन देखी जाती है. ठीक है, मतलब डिस्क में क्लिकिंग साउंड भी आती है, जब आप उसको पीछे लेके बंद कर रहे हो मुंह को तब उसमें क्लिकिंग साउंड आती है. दैट इज द केस विद anterior disc displacement with reduction. Next, the prevertebral fascia forms the floor of which anatomical triangle? Prevertebral fascia posterior triangle का
जो है वो फ्लोर बनाता है, ठीक है। प्री वर्टिब्रल फेशिया फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल, ठीक है, posterior triangle of the neck. Next, painful parotid swelling is characteristically explained by which anatomical feature? Painful swelling of the parotid gland is classically explained by the feature that is unyielding nature of the parotid fascia. Parotid gland is enclosed by the investing layer of the deep cervical fascia which is dense and underlying, unyielding, ठीक है। dense layer होती है parotid gland के नीचे, parotid gland सारा एक dense deep cervical fascia से enclosed है, ठीक है, जो कि अगर इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन होती है दैट लीड्स टू वेरी मच डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि नर्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगी, दैट विल लीड टू पैरोटाइटिस मेकिंग इट वेरी पेनफुल। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज एनलार्जमेंट ऑफ व्हाट? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज एनलार्जमेंट ऑफ सुप्राक्लेविकुलर निम्फ नोड्स, ठीक है। सुप्राक्लेविकुलर निम्फ नोड जो होते हैं उनकी इनलार्जमेंट अगर हो जाती है तो दैट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक की स्वेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर इज द ओनली कंटेंट लाइंग इमीडिएटली बीनीथ द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक? द ओनली कंटेंट लाइंग इमीडिएटली बीनीथ द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है, दैट इज द cranial nerve 11th. It runs in a fascial tunnel formed in the investing layer of the deep cervical fascia and is the only structure lying immediately beneath the roof of the posterior triangle. Immediately beneath the roof of the posterior triangle. Other nerves lie but deeper and closer to the floor. बाकी nerves जो है फ्लोर के पास ज़्यादा होती हैं. Next, which muscle divides the posterior triangle into occipital and supraclavicular triangles? और जो posterior triangle है उसको occipital और supraclavicular triangle में inferior belly of omohyoid divide करती है. Inferior belly of omohyoid. Next, a newborn is delivered after prolonged labor and is noted to have soft diffuse swelling over the scalp. The swelling is present on any part of the skull developed due to rupture of capillaries during delivery. The skull returns to normal shape and size within the few days of the postnatal life without any treatment. The most appropriate diagnosis for this is what? It is known as caput succedaneum. क्या बोलते हैं इसको? Caput succedaneum बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ये कैपिलरीज के रप्चर होने की वजह से एक गोलाकार सी एक स्वेलिंग बन जाती है स्कल के ऊपर, ओके, जो कि खुद ही बाद में जाके रिजॉल्व हो जाती है, ओके। इसमें क्या होता है? बॉगी एडिमेटस स्वेलिंग ऑफ द फीटल स्कैल्प विल बी देयर, इट डिसअपीयर्स विदाउट एनी ट्रीटमेंट एंड देयर इज नो पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ओवर दिस। और कैप गोज अक्रॉस द सूचर लाइन। कैप जो है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो डिलीवर होता है तो कैप जो होती है उसकी मतलब एक कैपिंग जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज अक्रॉस द सूचर लाइन दैट हैज़ बीन डेवलप्ड, ओके। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग सुपरफिशियल हो सकती है, कोई भी पार्ट ऑफ स्कल इन्वॉल्व हो सकता है, नॉट लिमिटेड बाय सूचर्स, रप्चर ऑफ कैपिलरीज ड्यूरिंग डिलीवरी और रिजॉल्व्स विद इन फ्यू डेज, दैट इज अ बेनाइन कंडीशन। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपुट सक्सीडेनियम. Caput succedaneum. Next, a 6-month-old infant undergoes CT scan of the skull for evaluation of head shape. Imaging reveals the linear midline lucency. ठीक है, midline radiolucency उसकी imaging के अंदर, okay. In the frontal bone extending from the nasion towards the anterior frontal nail. Frontal bone में है extending from nasion towards the anterior frontal nail. The margins are smooth and there is no evidence of bone overlap or sclerosis. Margin smooth है और कोई overlap या sclerosis का कोई भी हमारे पास वो नहीं है, एविडेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन इन दिस फाइंडिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास जो रेडियोग्राफ है वो ऐसे से दिया हुआ है, ठीक है। रेडियोग्राफ देख के तो मुझे कुछ लग नहीं पता, बट इट इज़ अ परसिस्टेंट मेटोपिक सूचर एंड अ नॉर्मल डेवलपमेंटल फाइंडिंग एट दिस एज. It's a persistent metopic suture and a normal developmental finding at this age. All right, this is the CT and the radiograph side by side. Okay, now the metopic suture is the midline that is lying in the frontal bone that represents the suture between the two frontal halves in the fetal skull. It is one of the earliest sutures to close physiologically, beginning around 3 months and completing this closure by about 8 months. ठीक है, ये मेटोपिक सूचर जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट सूचर होता है टू बी क्लोज. ऑन इमेजिंग इट मे अपीयर एज अ स्मूथ मिडलाइन ल्यूसेंसी विच शुड नॉट बी मिस्टेकन विद एनी अदर फ्रैक्चर और पैथोलॉजी. इमेजिंग में स्मूथ मिडलाइन ल्यूसेंसी की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये कोई भी फ्रैक्चर के या पैथोलॉजी के साथ मिस्टेक नहीं करना चाहिए. परसिस्टेंस में बी सीन इन 3 to 8% ऑफ द इंडिविजुअल्स. ओके, नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैसावेंट्स मसल इज टू डू व्हाट? पैसावेंट मसल, पैसावेंट्स मसल का प्राइमरी फंक्शन होता है वेलोफेरेंजियल क्लोजर. ठीक है, वेलोफेरेंजियल
क्लोजर होता है पैसिवेंट मसल का नॉर्मल प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट, द पेशेंट प्रेजेंट्स विद माइल्ड ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड ड्रूप कर रही है, कंस्ट्रक्टिंग प्यूपिल है एंड एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग ऑन द सेम साइड, स्वेटिंग भी सेम साइड से एब्सेंट हो चुकी है। ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन इंजरी, उसको सर्वाइकल चेन इंजरी सिंपैथेटिक चेन की इंजरी हुई थी, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। द टॉप्सिस इन द पेशेंट इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ विच मसल, जो टॉसिस हुई है, आई की टॉसिस जो हो रही है वो किस मसल की पैरालिसिस की वजह से हुई है? इट इज ड्यू टू द इंजरी टू द लेविएटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस। ये लेविएटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस अगर चली गई है, अगर ये कट हो गई है इसका नर्व सप्लाई, ठीक है, तब हमारे पास इसका पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट, द मसल नंबर करेक्टली शोन बिलो, ठीक है, इसमें आपको सिंपल एक डायग्राम दे रखा है, उसमें नंबर दे रखे हैं। अब कौन सा नंबर किसके साथ एसोसिएटेड है, बेसिकली एनाटॉमी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो मसल नंबर 8 पूछा है इसने, तो 8 इज़ बक्सिनेटर। ज़्यादातर जो ऑरल मस्कुलेचर वाले वहीं आपने याद करने हैं, ओके। सो सबसे आगे जो हमारे पास आएगा दैट विल बी फ्रंटालिस, ठीक है। फिर आँख के ऊपर आएगा दैट इज़ ऑर्बिकुलरिस ऑर्किस, ठीक है। फिर आँख के साइड से निकलेगा यहाँ से, ठीक है, इट विल बी गोइंग आँख के साइड से मुंह के ऊपर तक, दिस इज ज़ाइगोमैटिकस मेजर, ठीक है। फिर आता है लिप्स वाला ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, फिर उसके नीचे आता है दिस बड़ा वाला मसल, दिस इज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ओके। देन वी हैव पीछे वाला, ये पीछे पीठ की जो गले की हड्डी, गले से अपने ये ऊपर को जुड़ रही है सर का हिस्सा, दैट्स ट्रेपीजियस। फिर ट्रेपीजियस के आगे ये ओरल मस्कुलेचर के जस्ट पीछे ये गाल वाले हिस्से में, यहाँ पे हमारे पास आता है बक्सिनेटर, यहाँ आता है बक्सिनेटर। बक्सिनेटर के ऊपर जो हमारा सुपरफिशियल मसल होता है दैट इज मैसेटर, ठीक है। बक्सिनेटर के ऊपर जो सुपरफिशियल मसल दिस इज मैसेटर, और मैसेटर के ऊपर ये जो पूरा बड़ा वाला आ जाएगा, ऊपर से जो स्कल से नीचे को आ रहा है दैट इज नोन एज टेम्पोरालिस, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसमें अभी लेबल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा हुआ है। द लेबल गैप बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रक्चर ट्रांसमिट विच स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपीरियर कंस्ट्रक्टर है, उसके बीच में गैप दिया हुआ है, येलो कलर की कोई चीज़ आ रही है। फिर आता है मिडिल कंस्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच से क्या पास कर रहा था? इसके बीच से पास करता है स्टाइलोफेरेंजिस मसल, ठीक है। द गैप बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रक्टर मसल्स, इट ट्रांसफर्स दो चीज़ें, फर्स्ट इज स्टाइलोफेरेंजिस एंड सेकंड इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। Cranial nerve 9 that is glossopharyngeal nerve passes in between the superior and the middle constrictor and stylopharyngeus muscle इसके बीच से पास करता है। The internal laryngeal nerve passes through the gap between middle constrictor and inferior constrictor। अगर हम internal laryngeal nerve की बात करते हैं तो वो middle constrictor और inferior constrictor, middle और inferior constrictor के बीच से पास करता है, जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व होती है। क्लिनिकल रेलेवेंस क्या रहती है कि इंजरी टू क्रेनियल नर्व 9 हेयर कैन कॉज लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स एंड ऑल्टर्ड फेरेंजियल सेंसेशन। फेरेंजियल सेंसेशन ऑल्टर हो जाती है अगर इस क्रेनियल नर्व 9 को अगर इंजरी हो जाती है। तो गैप बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रक्टर अगर हमारा इंजर हो रहा है, सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रक्टर के बीच में गैप इंजर हो रहा है, तो वहाँ पे क्रेनियल नर्व अगर 9 इंजर होती है तो लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स हो जाता है एंड देयर इज ऑल्टर्ड फेरेंजियल सेंसेशन।